Hi. So this is the second session of our series where we are focusing on logical based approaches to solve CAT question. So our motto is to focus more on structure rather than the speed. So in the same line, let's start with the today's session. Now, look at the first question. Pause the video, read the question, think about this, solve, and then look at the solution. Okay? Now, read the question. So, the question reads as, the surface area of a closed rectangular box which is inscribed in a sphere is 846 centimeter. Surface area given है, right? एक rectangular box है, you can say box है, इसलिए you can say cuboid है, cuboid which is inscribed in a sphere. एक sphere के अंदर एक rectangular box और एक cuboid रखा हुआ है, right? Now, and its surface area. Now you need to understand what is the surface area, and everyone understand the surface area of a cuboid, right? You know the formula as well, right? Formula of a cuboid क्या होता है? Twice of LB plus BH plus LH, right? Now this is the surface area of the rectangle. It also says the sum of length of all the edges. Now what are the edges? अब edges, now look at your room. आप अपने room के देखो. So all the जितने भी edges हैं, right, along with the walls, right, they are the edges, right? So you have like in a wall you have the a line, you can say, at the bottom and at the top, also two horizontal lines, sorry, two vertical lines and two horizontal lines. So I can say in one wall you have four edges. Similarly on the other you have four, 8, and then there will be 4 on the your front side and the back side wall, 4 on each. But some lines or some edges are counted twice, right? So if you will observe it carefully, you will notice you will have 4 time lengths, 4 time breadths, and 4 time height, right? These are the edges. Now then the volume of the volume in cubic centimeter of the sphere. अब sphere का क्या पूछ रहा है? Volume पूछा जा रहा है. Now let's analyze the question. सबसे पहले आप सोच के देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है? वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 4/3 pi r cube. That simply means you need to find the radius, right? अब रेडियस क्या होगा? रेडियस चाहिए होगा, नहीं है ना? ना अब रेडियस के लिए अगर मैं स्फीयर को एक सर्कल के लिए अभी के लिए मान के चलूं तो उसके अंदर एक रेक्टेंगल है. आप थोड़ा सा केयरफुली अपने रूम को ऑब्जर्व करो तो समझ में आएगा जो बॉटम कॉर्नर टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर जो है, राइट, दैट इज द डायगोनल और यू कैन से द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इनटू इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, राइट, व्हिच इज दिस. थोड़ा और एनालाइज करोगे अपने रूम को तो समझ में आएगा दिस इज ऑल्सो, सिंस दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज kept inside a spherical box or inside a sphere, तो आपको समझ में आएगा कि यही जो डायगोनल है ना, that is the diameter. This is the dia. ठीक है? And अब एक रूम में जो सबसे बड़ा रॉड रखा जा सकता है वो क्या है? ठीक है? और you can say the longest diagonal of a rectangular box or a cuboid is L square root of L square plus B square plus H square, right? ये था पूरा का पूरा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो इस वाले क्वेश्चन में लगने वाला था, राइट? सो नाउ वी नीड द वॉल्यूम. हम लोगों को L square plus, so this is what? This is diameter of this rectangular box. Sorry, not the diameter of the sphere is L square plus B square plus H square. Now अब ध्यान से, इतना सा कॉन्सेप्ट था, बट अब ध्यान से देखते हैं कि जो डेटा अपने पास है. नाउ द सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर इज ट्वाइस ऑफ LB plus BH plus LH, which is given as 846 centimeter square. ठीक है? और यू कैन से यू डोंट नीड टू राइट दिस, ठीक है? 846 एज इट इज छोड़ दो, ठीक है? एजेस, अभी हम लोगों ने बात करा एजेस, सो विल हैव 4 times length, 4 times breadth and 4 times height. So I'll say this is 4 of L plus B plus H, which is equals to 144, right? And what we need is root of
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब थोड़ा सा ठीक है, अब आप केयरफुली इसको देखोगे ना तो आपको दिख रहा है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, फिर एल बी एन एच एंड एल स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। यहां ये देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि नाउ ये था ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, बट बाकी सारा आगे का काम तो अलजेब्रा से होने वाला है, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू अलजेब्राइक आइडेंटिटी विच इज, आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, तो आप सोच के देखो, ये ए बी सी, एल प्लस बी प्लस एच, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट, एंड ट्वाइस ऑफ एल बी बी, दिस इज ए बी बी सी सी ए एल बी बी एच एल एच। ठीक है, तो आप सिंपली इसी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। राइट, now L plus B plus H is given as what? L plus B plus H, this will go by 4 times, so 4 into 3, this is 32, 4 into 3 and 24, so this will become 36, not 32, this is 36, so this becomes 36 square, 36 square is equals to L square plus B square plus H square। यही तो हम लोगों को चाहिए, राइट, तो क्या करेंगे, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज कितना, 846, twice of LB plus BH plus LH is 846, तो minus 846 is equals to L square plus B square plus H square, right? Now L square plus B square plus H square, right? यही तो चाहिए। Now 36 square is 1296 minus 846 is equals to, this is L square plus B square plus H square, which comes out to be, this is 450. 450 root of 450 is equals to, or you can say this is, yes, L square plus B square plus H square is equals to 450। I think ये समझ में आ गया। Now moving further, ये समझ में आ चुका है तो हटा रहा हूं। Now अब ध्यान से देखोगे तो हम लोगों को चाहिए डायमीटर, और डायमीटर क्या है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना। तो यहां पे देखो तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 450। इफ डायमीटर इज 450, नाउ आई कैन से रेडियस विल बी इक्वल्स टू कितना, दिस इज 450 कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 225, 222 इंटू 225, राइट। तो आप दो को इसको 15, दिस इज 15 स्क्वायर, सो आई कैन राइट r इज इक्वल्स टू 15 रूट 2, right? Now since we got the r, now we can get the volume। अब वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं, so volume is equals to 4/3 pi and r cube, so this is 15 root 2 का whole cube, right? And this is okay, so this is r is divided by 2, I'm sorry, yes, diameter का आधा, right? So this is also divided by 2, so this will become divided by 8, so this will go by 2 times, right? Now we have 15 cube, so एक काम कर सकते हैं, 15 root 2 into, I can say this is 450 लिख सकते हैं, right? Okay, let's do one thing, 15 root 2 into 15 root 2 into 15 root 2 divided by, this is 3 into 2, this is 3 into this is this is 2, right? So this will go by 5 times, right? And this root 2 and this is 2 is gone, so now we have 15 into 15 is 225 into 5 into root 2, and साथ में we are left with pi, right? So 225 into 5 is 1125, so this becomes 1125 root 2 and pi, this is the final answer, ठीक है? So 1125 pi root 2, third is the correct answer। So this is how you need to think, this is how you need to structure। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि this is particularly a question from identities, algebraic identity, not the question from the geometry। कोई ज्योमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है, दैट इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस एजेस के बारे में बात क्या कर रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, सिंपल सा चीज, right? But particularly जो main idea है that बिलोंग्स टू दिस
अलजेब्राइक आइडेंटिटी, और उसके लिए इनको देखने के बाद आपके दिमाग में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए था. राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, a very easy question. I can say this is level 1 question, but student used to leave this question. तो student छोड़ देते हैं looking at बिना मतलब का ये फ्रैक्शन एंड देन ये बड़ा सा नंबर, राइट? ये सब देख के या आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, सॉरी इंडाइसेस के क्वेश्चन स्टूडेंट्स यूजुअली छोड़ देते हैं. आई डोंट नो व्हाई, राइट? बट अब ये बड़ा नंबर आपको बॉदर कर सकता है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग द कैट डजंट वांट यू टू कैलकुलेट, मतलब कुछ ना कुछ तो यहां पे ट्रिक हो सकता है, राइट? अगर आपको दिख रहा है कि लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज 1/8, तो 1/8 है, सो आई कैन राइट इट एज 1/2 का होल पावर 3 के लिख सकता हूं. 8 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू दिस 32768. प्रॉब्लम तो यहां पे है. ये क्या इतना बड़ा नंबर है, क्या 8 के साथ कुछ हो सकता है या 2 के साथ कुछ हो सकता है? एक बार देखते हैं. तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो. 2 का कोई पावर ये है क्या, मतलब दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर समथिंग. यूज द कैलकुलेटर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देख सकते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, 2 तो हो सकता है बहुत लंबा हो. क्या समथिंग दिस इज समथिंग इज इक्वल टू 8 टू द पावर समथिंग, राइट? इसके लिए तो इजीली कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. तो कैलकुलेटर में जब आप करोगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड एक बार और इंटू 8, बहुत सिंपल, कितना ही टाइम लग जाएगा कैलकुलेटर यूज करने में, राइट? दिस इज इक्वल्स टू दिस, राइट? सो सिंपली आई कैन से दिस इज टू द पावर 5, राइट? नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब सिंपल आई कैन से 8 टू द पावर 5. अच्छा, 8 को मैं चेंज कर रहा हूं 2 क्यूब में, सो आई कैन आल्सो से 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 15. एकदम आराम से लिख सकते थे. ये एक थॉट प्रोसेस हो गया. थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो ये सोचेगा कि दिस नंबर इज बड़ा सा 32,768, राइट? अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ और क्यूब ऑफ 30 क्यूब कितना? दिस इज 27,000. एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ 40 cube is 64,000, right? That simply means ये जो 32,760 है, this is between 26 and 64,000, which simply means यहां पे कहीं पे मेरा 32,000 है. That means 30 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हो सकता है, 31 स्क्वायर क्यूब हो सकता है या 32 क्यूब हो सकता है. अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? लुक एट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर. दिस इज 8, 32768. तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है. अब किस नंबर, आप सोच के देखो, 31, 32, 33 के यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उनको क्यूब करने पे कहां पे 8 आता है? 1 क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा. 31 में 1 क्यूब किया, 32 के लिए 2 क्यूब करेंगे तो 8 आता है. एंड फॉर श्योर 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पे 8 आता है. अदरवाइज 3 क्यूब करेंगे तो 7 आएगा यूनिट डिजिट पे. 4 क्यूब करोगे तो 4 आएगा. 5 क्यूब करेंगे तो 5 आएगा. 6 क्यूब करेंगे तो 6 ही आएगा. ये हम लोग सारा कुछ देखे हैं नंबर सिस्टम के अंदर. नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी पढ़े हैं, राइट? तो ये समझ में आ गया कि नाउ आई कैन से ये तो 32 का स्क्वायर, 32 का क्यूब है. एंड 32 का क्यूब क्या होता है? 32 इज 2 टू द पावर 5 ना. 2 टू द पावर 5 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 15. अब इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं तब तो प्रॉब्लम है, राइट? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, तो इतना सारा अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड करने का जरूरत है. और ये बहुत बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. एकदम आराम से अगर आप लॉजिकली फोकस्ड होके सोचोगे, राइट, दिस इज इजी, राइट? नाउ लेट्स सॉल्व दिस. तो नाउ वी कैन से दिस इज 1 टू द पावर 8. आई कैन से 1/2 टू द पावर 3 के लिख सकता हूं. इनटू दिस इज, अभी हम लोगों ने लिखा दिस इज 2 टू द पावर 15, right? So this becomes 1/2 to the power 15 divided by 3. That is equals to 1/2 to the power 3 and into 1/2 to the power, this is 1 by k, so this is 2 to the power 15, so this will become 15 by k, right? अब देखो बेसिस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. So that becomes 1/2 to the power 3k plus this will go by 5 times, so this is plus 5 is equals to, इधर भी basis same है, so this will become 1/2 3 plus 15 divided by k, right?
अब देखो दोनों ही तरफ बेस अगर सेम है तो पार्ट्स इक्वेट हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम 3k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई k, है ना। सो 3k को राइट हैंड साइड उठा के लेके चले जाते हैं, सो दिस विल बिकम 15 बाई k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2. That becomes a quadratic equation. आप देखो क्या बनेगा, k अगर LCM पे रखते हैं so this will become 15 minus 3k square is equals to 2k. Further solving this, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है, so this becomes 3k square, this is plus 3k plus this is 2k and this is minus 15. Minus 15 is equals to 0. That's the quadratic equation. नाउ एक बार फटाफट जल्दी से क्वेश्चन पूछें, सच में क्या हम लोगों को इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है, उसके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x, आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस विल गेट टू वैल्यूज ऑफ k, राइट, व्हिच आर द रूट्स, द सॉल्यूशन, राइट. दैट सिंपली मींस वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स तो हम लोगों को पता है, सम ऑफ रूट्स that is equals to minus b by a, which is equals to minus b of minus 2 divided by कितना 3. मेरा फाइनल आंसर कितना है, minus 2 divided by 3. So correct answer is 1. 1 is the correct answer. So जब भी आप क्वेश्चन देखो थोड़ा रुक जाओ, पढ़ो, एनालाइज करो, देन सॉल्व और स्किप अ क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा, थॉरली समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपको करना है या नहीं करना है. बट ब्लाइंडली सिर्फ स्पीड में पढ़ना और फिर जल्दी जल्दी एनालाइज करना या सोचना सिर्फ विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, रीड इट. सो an amount of rupees 10,000 is deposited in a bank for a certain year at a simple interest of 5% per annum, right? अब कितना है मेरा प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल. अब देखो यहां पे हम लोग थोड़ा सोचेंगे, फिर से एक बार इसको कन्वेंशनली करके दिखाते करते हैं एंड फिर सोचते हैं कि देखो एक 99 परसेंटाइलर होता तो क्या सोच रहा होता. देखो तो P इज इक्वल टू प्रिंसिपल मेरा कितना है 10,000 is deposited in a bank on a simple interest. कितने साल के लिए नहीं पता, but the rate of interest is given as 5%, right? 5%. तो T कितना, let's say T years ही ले लेते हैं, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी, I'll say this is 10,000 प्लस. अब सोच के देखना, I'm not, अभी थोड़ा और लॉजिकली सोचते हैं कि इंटरेस्ट कितना बनेगा. देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 5% मिलता है, we have discussed a lot of time in our classes, right? So 5% of 10,000 कितना होता है, 5%. 10% of 10,000 is 1,000, तो 5% हो जाएगा 500. तो एक साल में 500, एंड वी नो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हर साल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है. तो एक साल में 500, 2 साल में 500 इंटू 2, 3 साल में 500 इंटू 3, तो टी ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 500 इंटू 2. तो अगर मैं इंटरेस्ट लिखना चाहूँ तो 500 इंटू टी, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500 टी, राइट. सो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 500 टी, राइट. दिस इज डन. ये मेरा अमाउंट है आफ्टर टी ईयर्स. ठीक है, एक बार क्वेश्चन फर्दर पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है. ऑन मेच्योरिटी का मतलब आफ्टर टी ईयर्स वट एवर इज द अमाउंट, राइट. द टोटल अमाउंट रिसीव्ड एंड इज डिपोजिटेड टू द बैंक बी फॉर अनदर 5 years. देखो सिंपल सा है. अब अगली बार सेकेंड, ये था मेरा बैंक ए, अगर मैं बैंक बी के लिए देखता हूं तो क्या हो रहा है, मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 500 टी, राइट. नाउ 10,000 receipt is deposited in bank for another 5 years at 6% per annum. ठीक है, तो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड टाइम इज इक्वल टू कितना 5 years. ठीक है, तो यहां से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू 10,000 प्लस 500 टी का 6%. नाउ 6%, अच्छा देखो 6% तो एक साल में मिला है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, सिंस दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट, राइट. तो 6 into 5 30% हो गया. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30% ऑफ दीज, राइट. 30% ऑफ 10,000 कितना 3,000 एंड 30% ऑफ
500x. अब 500 का 10% इज 50, तो 30% 150. So this is equals to plus 150t. Right? This is the interest. Now आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. If the interest received from bank A and bank B, याद careful. The interest बोल रहा है. If the interest received from the bank A and bank B are in ratio 10:13. Okay. Interest earned from bank A क्या है? 50 500t divided by bank B से interest कितना मिला है? 3000 plus 150t, right? And that is equals to 10/13. This is 10 divided by 13. Let's solve it and we'll get the answer. ठीक है, t का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा. So this is gone, this 0 is gone. 13 into 5 is 65. So this is 650t is equals to 3000 plus 150t. 152 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, so that become 500t. 500t is equals to 3000. Right? This is gone. So t का वैल्यू is equals to 6 years. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. बट बिलीव मी, ये क्वेश्चन है ना सीखने के लिए, प्रेपरेशन जर्नी के लिए ठीक है, बट ये आपके मॉक में या एक्चुअल कैट एग्जाम में सॉल्व करने के लिए एकदम भी अच्छा मेथड नहीं है. तो सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं करना है. कहीं पे लिख लो, हिंदी में लिखो कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, तो फिर करना कैसा है? नाउ स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली. थोड़ा आप सोच के देखो. अगर लॉजिकली सोचना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल सा चीज है कि मेरा प्रिंसिपल तो 1000 रुपीज है, सॉरी 10,000 रुपीज है. मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट इज 10,000 का 5% के हिसाब से टी इयर्स के लिए आई से मेरा 500t है. दिस इज इंटरेस्ट इज 500t. ये कहां से? बैंक ए से. अच्छा, एक ही और सोच के देखना. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ए इज टू इंटरेस्ट ऑफ बैंक बी इज गिवन एज कितना? 10:13. राइट? 10:13. राइट. अब देखो 10 पार्ट इज कितना? इंटरेस्ट फ्रॉम 500, सो दिस इज 500t. अगर 10 पार्ट 500 है तो 1 पार्ट इज 50, 1 पार्ट इज 50, सो 13 पार्ट इज 650t. यहां से 650t आ गया. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो आप सोच के देखो, कैन आई ऑल्सो से कि सर ये 500t एंड 650t, तो 150t इधर ज्यादा मिला है. एज सिंपल एज दैट. 150t. तो इन द नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ऐसे सोचो. नाउ अभी ये 10,000 प्लस दिस इज 500t पे मेरे को 5 साल के लिए 6% पर एनम के हिसाब से 30% का इंटरेस्ट मिलेगा. 30% इंटरेस्ट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना? 3000 प्लस 150t. और यही तो मेरा 650 के बराबर होना चाहिए. सो सिंपली आई कैन से 650 प्लस 650t इज इक्वल्स टू 3000 प्लस 150t. एंड वी गॉट द सेम थिंग लाइक दैट. ठीक है, सो दैट बिकम्स कितना? 500t इज इक्वल्स टू 3000. t का वैल्यू 6. ठीक है, एंड दिस यू कुड हैव डन ओरली. एकदम आराम से दिमाग में भी करा जा सकता था. राइट? दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक. हमेशा कन्वेंशनली जाने से आप कितना भी अच्छा मैथ्स जानते हो फर्क नहीं पड़ता है, बट यू विल नॉट रीच 99 परसेंटाइल. बिकॉज हम लोग बात कर चुके हैं, कैट ऑलवेज वांट टू टेस्ट योर लॉजिक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. राइट? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. अ ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क. अब मिल्क बोल रहा है ना, हमेशा प्योर मिल्क. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एलिगेशन. और सीधे मिक्सचर बोल देते हैं. देखो क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर, लेवल 1 क्वेश्चन अगेन. इससे सिंपल क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से हो ही नहीं सकता है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं? छोड़ देते हैं इसे क्वेश्चन. ठीक है, देखते हैं. अ ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क. 2/3 of the content is poured out and replaced with water. This process of pouring out 2/3 of the content, we have discussed this entire concept of replacement in our classes, right? हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है. we have solved a lot of question. और उसके सामने जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास करा है उसके मुकाबले ये वाला क्वेश्चन लेवल 0 है. राइट? नाउ तो देखो क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क बोल रहा है. मिल्क है मतलब प्योर मिल्क बोलेंगे, प्योर मिल्क.
ठीक है, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम नहीं पता, बट हम लोगों को पता है यहाँ पे मिल्क प्रोपोर्शन तो 1 होगा, बिकॉज प्योर मिल्क है, तो मिल्क प्रोपोर्शन 1. वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन एंड ऑल, राइट. नाउ 2/3 ऑफ द कंटेंट इज पोर्ड आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर. ठीक है, अब सोच के देखो हम लोग क्या करेंगे. 2/3 निकाल दिया गया. अगर इफ यू गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही तो मेरा इनिशियल क्वांटिटी होता है. तो एक काम करते हैं ना, जब खुद ही मानना है तो व्हाई अज्यूम 3x और 100x एंड समथिंग लाइक दैट. लेट्स सिंपली अज्यूम 3. ठीक है, कि मेरा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो मेरा 3 है, राइट. तो क्या हो रहा है, 2/3 ऑफ द कंटेंट इज पोर्ड आउट, 2/3 निकाल दिए, राइट. तो यहां से वॉल्यूम 3 में से -2 करा तो बचा कितना, 1 बचा. और 1 से पोर्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, तो +2 वाटर करा तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर से 3 हो गया. हम लोगों ने बात करा है दैट मिल्क प्रोपोर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम को इफ वाटर इज एडेड, ठीक है, वाटर इज एडेड. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम को अगर मैंने डबल करा है, वॉल्यूम को डबल करा है, तो इसका प्रोपोर्शन, उल्टा प्रोपोर्शन, मिल्क प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, वॉल्यूम को अगर मैंने इंटू 5/4 करा है तो ये मिल्क प्रोपोर्शन 4/5 हो जाएगा, उल्टे से रिप्लाई हो जाता है. तो आप सोच के देखो, यहां से 1 से 3 जाने के अंदर, इसके अंदर तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो मिल्क प्रोपोर्शन यहां का मिल्क प्रोपोर्शन तो 1 ही होगा, और यहां का मिल्क प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 into ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो मिल्क प्रोपोर्शन 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ दिस इज द मिल्क प्रोपोर्शन. ये था पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने समझाया है. अब इतना के बाद देखो आगे क्या बोल रहा है. If the process of pouring out 2/3 of the content and replacing with the water is repeated 3 more times, 3 more पास एक बार किया और 3 बार और करने बोला, that simply means जो मेरा मिल्क प्रोपोर्शन हो जाएगा वो 1/3, 1 into 1/3, दूसरी बार के लिए फिर 1/3 into 1/3 and into 1/3. That's all. आप सोच के देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, राइट, लेकिन करना तो सिर्फ इतना ही था. बेयरली 10 सेकंड का क्वेश्चन. 3 to the power 4 is 81. तो मेरा मिल्क प्रोपोर्शन कितना हो गया, 1/81. दिस इज मिल्क एंड दिस इज कितना, दिस इज टोटल मीन्स मिल्क प्लस वाटर. नहीं, द क्वेश्चन इज देन द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द ग्लास. द रेशियो ऑफ मिल्क कितना है, 1 है, और टोटल में से मिल्क हटाएंगे तो वाटर मिलेगा 1:80. 1:80 इज द करेक्ट आंसर. द सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ऐसे भी क्वेश्चंस कैट में आए हैं, और दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024. अगर अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने, हम लोगों ने, ये दिस इज द सेकंड सेशन, वी हैव अनसॉल्व्ड 7-8 क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ. एकदम आराम से करे जा सकते थे विदाउट गोइंग फॉर much deep into the concept, without going for the conventional approaches. ये सारा चीज आप लॉजिकली अपने जुगाड़ से नंबर्स को पुट करके भी कर सकते थे. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. ठीक है, दिस इज अ टीटा क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क टॉपिक, राइट. एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. Renu would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task, whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day. ठीक है, तो अगर मैं रेनू की बात करता हूं तो रेनू क्या कर रही है, रेनू इज डूइंग 15 days, रेनू 15 days and working for 4 hours. This is 4 hours. ठीक है, तो 15 into 4 60. सो इसका टोटल कितना हो गया, 60 आवर्स हो गया. देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कन्वेंशनली या थोड़ा सा स्मार्टली, कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं दिखाता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा और लॉजिकली कैसे कर सकते थे. ठीक है, नाउ सीमा अगर कर रही है तो सीमा कैन डू 8 डेज के अंदर काम, वर्किंग कितना, 5 आवर्स पर डे. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 40 आवर्स. अब देखो क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. नाउ आई कैन से रीमा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 आवर्स, सीमा कैन डू the same work in 40 hours. Simple सा है statement, right? Now आगे. They decided to work together to complete this task. Now Seema agrees to work the double number of Seema agrees to, okay, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है आगे. Seema agrees to work the double number of hours as Renu, while Renu agrees to work the double number of days as Seema. ठीक है. Now, if Renu work for 2 hours, okay, रेनू के बारे में बोल रहा है कि this is 2 hours per day. तो सीमा तो डबल है ना, देखो कहां पे, ये देखो
Seema agrees to work the double number of hours per day as Renu. So this will be 4 hours per day. ठीक है. Now, while Renu agrees to work the double number of Seema. So let's say Seema work for x hours. So this will be कितना? 2x hours. ये तो 2x hours हो गए. Right? Now, ये this is 2x hours नहीं 2x days. This is 2x days. This is also x days. Now, अगर मैं 2x डेज तक 2 आवर्स से काम कर रहे हैं, इधर 4 आवर्स x डेज के लिए 4 आवर्स पर डे के हिसाब से काम हो रहा है. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि रेनू कितना काम कर रही है. रेनू इज डूइंग 2 वर्क पर डे फॉर 2x डेज. राइट. नाउ इधर थोड़ा सा वापस आते हैं. नाउ आई कैन से रेनू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज एंड सीमा कैन डू इन 40 डेज. सो आई कैन से अज्यूम द टोटल वर्क एज व्हाट. टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं. इतना हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज द एलसीएम ऑफ 60 एंड 40 विच इज इक्वल टू 120. राइट. इन दैट केस रीमा का एफिशिएंसी क्या है? 60 इंटू 2. सो दिस इज 2 वर्क पर डे. एंड सीमा का एफिशिएंसी है फॉर 60 120 डिवाइडेड बाय 40. दिस इज 3 वर्क पर डे. ये तो हम लोगों को पता चल गया. राइट. नाउ अब आप सोच के देखो 2 आवर्स पर डे 4 आवर्स पर डे 2x डेज के लिए काम करेंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा. 4 इंटू 2 दिस इज 4x आवर्स यहां पे काम हुआ. एंड दिस इज ऑल्सो 4x आवर्स. ये भी 4x ही हुआ. नाउ रीमा एक दिन में 4x पर ओके सो दिस इज पर आवर होगा वर्क पर आवर. ठीक है. तो 2 इंटू 3. सो दिस इज कितना इंटू रीमा के लिए दिस इज इंटू 2 एंड दिस इज इंटू 3. सो दैट इज इक्वल टू रीमा हैज डन 4 इंटू 2 8x and C has done 8x and this is 12x. So इतना काम कर लिया और इतना काम होते ही मेरा काम खत्म हो गया. That simply means I can say 12x plus 8x. देखो ध्यान से फिर से इतना काम किया है और एफिशिएंसी 2 है तो 8x वर्क हो जाएगा यहाँ पे. I'll write this is 8x work and this is 12x work. राइट. तो टोटल वर्क हो गया 12x plus 8x which is equals to कितना 120. So 20x का वैल्यू हो गया 20. 120x का वैल्यू हो गया 6. That simply means Seema will do work for 6 days and that is what which is asked in the question, right? Then the number of days Seema will work. Seema इतने दिन काम करेगी. I think this is clear. तो 6 is the correct answer. But still फिर से ये हो गया कन्वेंशनल मेथड. ऐसे नहीं करना है. राइट. फिर से भाई ठीक है. दिस इज कन्वेंशनल. थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं फिर से. यहां पे अगर आप देखेंगे तो रीमा और सीमा के लिए देखते हैं. ठीक है. दिस इज मेथड 2. ठीक है. आई विल से दिस लॉजिकल मेथड. ठीक है. और देखो इतना समझना कि जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, जब आप प्रैक्टिस कोई टॉपिक सीख रहे हो तो जब तक स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखोगे आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाओगे. और लॉजिक नहीं समझ पाओगे तो आपका ये सीखना या ये बोलना कि आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन लॉजिकली वो नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो रीमा के लिए अगर देखेंगे तो रीमा इज 15 इंटू 4 कितना 60. 15 into 4 which is equals to 60. Seema is 8 into 5 which is equals to 40. Right. Now they decided to work like रीमा के लिए कितना है. रीमा इज अभी हम लोगों ने निकाला था. दिस रीमा कैन डू 2 hours per day and says 4 hours per day. Right. Now on the same line I can also say C can work for 2x days. ये तो हम लोगों ने निकाल दिया था और ये दिस इज x days. अब देखो इसके बाद ना सिंपल सा लॉजिक क्या है. आप कुछ बहुत खास करने की जरूरत नहीं है. बहुत इजीली आप ये काम कर सकते थे. देखो लेट पुट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1. मैं बोल सकता हूं कि इसने एक दिन किया तो इसने टोटल 4 वर्क पर डे. तो इसका कितना काम हो गया 4 वर्क हो गया. 4 वर्क. सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे तो दिस इज 4 this is 1 तो 2 into 2 this is also 4 work. ठीक है. सो 4 वर्क. तो एक दिन में देखो एक शुरू किया दोनों ने तो नाउ आई कैन से ना कि C has worked कितना 4 वर्क आउट ऑफ 60. तो 4 by 60 at 8 equals to 1. रीमा is equals to 4 by 60 which equals to 1 by 15. 1 by 15 कितना होता है 6.66%. ठीक है. सीमा कितना देखो परसेंटेज में थोड़ा सा घुस गया. सीमा का 4 वर्क है. 4 वर्क आउट ऑफ कितना
4 वर्क आउट ऑफ कितना 40, 4/40 विच इज इक्वल टू कितना 1/10, 1/10 मतलब 10%। मतलब अगर एक एक्स का वैल्यू मतलब सीमा सीमा अगर एक दिन काम करेगी तो कितना काम हो जाएगा, तो काम होगा 10 + 6 16.66%, 16.66% विच इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वर्क, 1/6। अब सोच के देखो इस सीमा के एक दिन में 1/6 काम हो रहा है तो टोटल काम करने में कितना दिन लग जाएगा, दैट सिंपली मींस 6 डेज। सीमा को कितना दिन काम करना पड़ेगा, 6 डेज तक काम करने का, दैट्स ऑल, हो गया, राइट। तो आप सोच के देखो कि आप ऐसे करना चाहते हो या थोड़ा सा दिमाग लगा के, दैट वुड बी अ अप्रोच, राइट। ये या फिर आप ऐसे करना चाहते हो, ठीक है। एंड बिलीव मी, आपको धीरे धीरे ये वाला जो अप्रोच है, राइट, वो धीरे धीरे ही आएगा। आपको हर क्वेश्चन को रुक के देखना समझना पड़ेगा एंड आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, यू नीड टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन चाहता क्या है, और वो चाहता क्या है तो उसका रोड मैप कैसे बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अब ये एक क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉगरिथम्स, राइट, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगेन लेकिन क्या होता है, देखो इसमें दो कैटेगरीज होते हैं। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है वो लॉग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको आता है तो इसको डेफिनेटली बनाओ, नहीं आता है तो चुपचाप छोड़ सकते हैं, राइट। नाउ इजिली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये सारे ऐसे टॉपिक है ना, लॉगरिथम्स या मॉडुलस, राइट, या पीएनसी, मैं हमेशा ये टॉपिक्स रेकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से आता है, इवन एपीजीपी, एंड देयर आर इजी क्वेश्चन। समटाइम्स एपीजीपी से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बट लॉग से हमेशा इजी क्वेश्चन आया है मोस्टली, राइट। तो आई रेकमेंड एवरीवन टू गो विद सच टॉपिक्स, लाइक to definitely prepare these topics like logarithms, modulus, PNC, इन सबको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहां से इजी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आउटपुट मिलेगा ही, राइट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। Question is very simple and we'll use the properties, some properties of log. Look at this. So we have 4 log x to the power 10. 4 log x base 10, 4 log x base 100. Now look at this, x is not changing, only the base is changing. So I can say this, I can write it as 4 log x base 10 plus, अब देखना एक बार, हम लोग के पास अगर ऐसा कुछ है ना, log, एक प्रॉपर्टी जल्दी से बता देता हूं, log x to the power a base let's say y लिखा हुआ है, I can write it as a log x base y. Similarly log a base b to the power y लिखा हुआ है, तो I can write, देखो b to the power y है ना, तो log के पहले जाएगा, this will be 1/y, this is log a base b बन जाएगा, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, so that becomes 4 log x base 10 स्क्वायर है, चलो एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, प्लस दिस इज 8 log 10 क्यूब log x base 10 क्यूब is equals to 13, right? Now यहां तो पावर 1 है, so that become 4 log x base 10 प्लस 4/2 बन जाएगा ये, क्योंकि 4 into 1/2, तो 4/2 log x base 10 एंड प्लस फाइनली लास्ट में बनेगा, दिस इज 8 divided by 3 log x base 10, right? I think you have understood this step, right? अब ध्यान से, अब हम लोग इसको देखो 4 इधर आके यहां पे लग सकता है, दिस इज अभी जो समझाया मैंने आपको कि log a to the power x base b है, तो that can also be written as x to the power x log a base b, तो ये इधर भी जा सकता है और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इधर लिखा हुआ है तो इधर लाके पार में लगा सकते हैं, सेम थिंग यहां पे भी हो रहा है। सो आई कैन राइट इट एज व्हाट, आई कैन राइट इट एज log x to the power 4 base 10, this will go by 2 times, so plus log x square base 10 and plus this will become log x base log x 8 x to the power 8/3 and base 10, right? Now
Let's solve it further. So आपको दिख रहा होगा, we have also a property of log. log a plus log b लिखा हुआ है, that plus log c भी लिख देते हैं, चलो, is equals to log abc होता है, right? So I can write it as, देखो, base and considering the base of all three has to be same, right? तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, x to the power log आपको मिलेगा x to the power 4 into x square into x to the power 8 divided by 3 base 10, and that is equals to 13. ठीक है. Now अभी आज के सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इंडाइसिस का रूल पे सीखा था कि अगर बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, log x to the power 4 plus 2 plus 8 divided by 3 and base 10 is equals to कितना, that is equals to 13, right? So that means 4 plus 2 6, 6 into 3 24, 6 into 3 18 plus is 26. So we got log 20 x to the power 26 divided by 3 and base 10, that is equals to 13, right? तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आप इसको लेके आ जाओ 26. I can write it 26 divided by 3 log x base 10, that is equals to 13. That will go by 2 times, right? Now we have log x base 10 is equals to, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो 3/2 बनेगा, 3/2, right? Now तो यहां से x कितना हो जाएगा, so x will be equals to 10 उधर जाएगा, so this will be 10 to the power 3/2, right? This is my x, right? Now what is asking the question, in the greatest integer not exceeding x. अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, x is equals to greatest integer not exceeding 3/2, 10 to the power 3/2. अब 10 to the power 3/2 कैसे निकालेंगे, this is technically that is equals to root of 1000. अब रूट ऑफ 1000 कितना, अब मेरे को इंटीजर भी चाहिए, आप सोच के देखो 30 स्क्वायर कितना, 30 स्क्वायर कितना, दैट इज इक्वल्स टू 900. 31 स्क्वायर कितना, दैट इज इक्वल्स टू 961, एंड 32 स्क्वायर कर देंगे तो ये 1024 बनेगा, विच एक्सीडेड 1000, राइट? दैट मींस सिंपली मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 31 इज द करेक्ट आंसर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 31. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. समझ में आया? तो दिस वाज अ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बट नॉट दैट डिफिकल्ट. छोटे छोटे जो रिजल्ट्स हैं ऑफ लॉग, राइट, उनको यूज करके ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था. So that's all for today's session. I think you guys have enjoyed and you have learned something from this session. Hope you have enjoyed, and if so, please do subscribe to the channel, and also let me know if you have any doubt or any suggestion in the comment box. Thank you so much, and do subscribe to the channel.